ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರುವಂತ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥ ಬೆಸ್ತ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಇವತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 9ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವರದಿಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರ ವರದಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ದಯಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ RTCಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ RTC ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ತಾವು ಈ ಜನಾಂಗದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ये सेवा स्तंभ को, जबकि इसके फाउंडर है डी संजय भैया जी. संजय भैया जी वहाँ पे दिल्ली में सेंट्रल में और आंध्रा के अंदर जो है दलित फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन आंध्रा. ही इज ए ग्रेट लीडर, ही इज ए गुड एकोनॉमिस्ट and he was a good writer. నేను మిమ్మల్ని అందరికీ ఈ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్కి, రెస్పెక్టెడ్ బిఎస్ రాజా గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటని చెప్పంటే, ఇప్పుడు రేపు మే 24న 25న జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. అంటే ఈ జనరల్ ఎలక్షన్లో సేవాస్తమ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. దీనిలో ఒకటి ఏం క్రియేట్ అయిందని చెప్పంటే, ఎక్కువ మెజారిటీ ఏంటని చెప్పంటే, ఈ యొక్క సేవాస్తమను కాపాడాలంటే సంగీతరావు గారు చనిపోయిన తర్వాత ఒక నాగేశ్వరరావు గారే ఈ సేవాస్తమని కాపాడతాడు. ఆయనకి ఆయన శక్తి ఉంది, ఆయన మేధావి, ఆయన్ని గెలిపించుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉన్నట్లే. నేను అందుకని మీకు ముందుగా తెలియపరుస్తాను. కానీ వాళ్ళందరి యొక్క ఆలోచన విధానం ఏంటని చెప్పంటే, ఈ సేవాస్తమం కనుక నాగేశ్వరరావు కనుక లేకపోయే పని అయితే మన సౌత్ వాళ్ళని ఇక్కడ ఎంటర్ కానీ ఆ సేవాస్తమానికి ఢిల్లీలో. రెండోది వచ్చి హిందీలో వచ్చి అంత మేధావుడు లేడు. సంగీతరావు గారుగానే పొద్దునే 10 గంటలకు పోయి సాయంత్రం 5 గంటలకి ఈ వయసులో కూర్చొని నాగేశ్వరరావు ఢిల్లీలో ఎంతో పనిచేస్తున్నాడు, ఢిల్లీలో ఎంత కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు అని అందరి యొక్క
सहना सद्बुद्धि ना मेलुंदे। मैं प्रेस वाला भाई साहब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा मेन उद्देश्य है, मैं 2-3 महीने पहले मैंने राष्ट्रपति मैडम को एक चिट्ठी लिखा है। वो चिट्ठी में मैंने राष्ट्रपति मैम से रिक्वेस्ट किया था, क्यों मैडम जी आप राष्ट्रपति है और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर नहीं, इस वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी तक कोई भी नहीं लिख पाया, कोई भी जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद भी नहीं कर सकता है। और दूसरा, उनकी स्टैच्यू को जो पार्लियामेंट के वहां से निकाल करके पुराना फॉर्मेट से उसको पीछे को धकेल दिया। क्या उस टाइम पे बाबा साहब का अम्बेडकर ही जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, वर्ण व्यवस्था, अनटचेबिलिटी, ये सब जो है उस टाइम पे दलितों को अच्छे पानी पीने के लिए, अच्छे कपड़ा पहन करके, अच्छे कोट पहनने के लिए भी जो है हमारे को कोई हक नहीं दिया। मगर बाबा साहब ने 1 लाख आदमी को नागपुर में रैली कर करके हमें अच्छे पानी पीने के लिए जो है उन्होंने लड़के जो है हमें रास्ता दिखाया, जबकि उस टाइम में हमें तालाब में भी और नहर में भी पीने के लिए हमें हक नहीं था। तो हमारे पोजीशन ये थे। उन्होंने, बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, आप लोगों को पता नहीं है। इसी वजह से अभी जो 135 का जन्मदिन अवसर पे ऊपर पूरा देश के अंदर हर स्कूल में और हर कॉलोनी में बाबा साहब का जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उनको आगे जो है प्रोग्रेस करने के लिए, स्कूल का सिलेबस में भी जो है प्रोग्रेस करने के लिए जो है सारे गवर्नमेंट्स की तरफ से, स्टेट एंड सेंट्रल में भी जो है प्रोत्साहित किया। मैं इसका उनका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ मेरी बात सुनने के लिए। दूसरा, मेरा कहना यही है कि बाबा साहब जो है छोटा आदमी नहीं है। मैं अहमदाबाद में, बड़ौदा में गया था। बड़ौदा में जब बाबा साहब जो है वहाँ पे लंदन में जा करके जो है उन्होंने जब डिग्री लेके आया था, उस टाइम पे उन्होंने बड़ौदा राजा के पास 11 दिन का जो है नौकरी के लिए गए थे। उन्होंने सोचा मेरा नया नया नौकरी जो है इनके साथ करूंगा बोल करके। जब बाबा साहब ने जो है कुर्सी पे बैठा था, वहां का जो अपर कास्ट लोग है वो आपस में बातचीत कर रहे थे, अरे भाई बाबा साहब तो बाबा साहब है, मगर जो है वर्ल्ड से जो है बड़ा बड़ा डिग्री लेके आया है, तो अनुसूचित जाति है। हम इनको, जब बाबा साहब ने घंटी बजाया फाइल लाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, उन्होंने कोई भी जो है उनकी घंटी को नहीं सुना है। बाद में बाबा साहब ने पूछा, क्यों भाई मेरा घंटी नहीं सुन रहे हो और मेरे को जो है फाइल नहीं लेके जा रहे हो, क्या बात है? बोले से बोला है, आप तो अनुसूचित जाति हो, हम ब्राह्मण हैं, इसीलिए हम नहीं पिला सकते। ऐसे जो है कठिनाई बाबा साहब ने उठाया। उसके बाद मैं नागपुर में जो है दीक्षा भूमि में गया। वहाँ बाबा साहब का दीक्षा भूमि के अंदर भी जो है मैंने दर्शन किया। और बाबा साहब ने वहाँ जहाँ संकल्प लिया था बड़ौदा में, उसी पेड़ के नीचे बैठ करके मैंने संकल्प लिया, बाबा साहब को याद किया। और वहाँ का जो संकल्प का जो है डायरेक्टर मुझे आमंत्रित किया और मुझे प्रोत्साहन दिया। साथियों, मेरे कहने का मतलब यानी कि लेट होने के बाद भी जो है आखिरी में जो ये रेस्पेक्टेड मैडम जो सबसे पुराना है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा जो है जो लेडीज बैठे हुए हैं, बाद में आया हमारा ये मीटिंग को सक्सेस किया। देखिए कठिनाई आते रहती है, गवर्नमेंट जाते रहती है,
मगर बाबा साहब का जो आवाज़ है, बाबा साहब का जो करता है, उनका कठिनाई है वो कोई भी नहीं भूल सकता है। इसलिए ये जो आप लोगों ने जो बड़े बड़े कुर्सी में बैठे हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन करके, जो हम लोग जो है ये डाइस के ऊपर बैठे हैं, ये इसीलिए कि वो बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, उन्हीं की मेहरबानी से हम आए हैं, पढ़े हैं। उन्होंने यही बोला था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एडुकेट। इसलिए आप लोग इस सेवा स्तंभ जो रखी है, ऑल इंडिया SC, BC एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, इन्हीं की अगर ये जो है 4 जाति अगर मिल जाएगा, 85% जो है इस देश को राज करने के लिए जो है आगे बढ़ेगा बोल करके बाबा साहब ने रास्ता दिखाया। मगर आज के जमाने में लोग सोचते हैं जहाँ इन लोगों को ये इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इनको अलग अलग करना चाहिए और इनके आपस में लड़वाना चाहिए, कर रहा है। तो इसीलिए साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी जो पहले हमारे को रिजर्वेशन मिलता था, मगर अभी हमारा बच्चे ने क्या किया, हम अगर रिजर्वेशन में जाएंगे, रिजर्वेशन तो एक नाम का वास्ते है, मगर रिजर्वेशन तो है ही नहीं है, रिक्रूटमेंट भी नहीं है, प्रमोशंस भी नहीं है, फिर हम लोग तो ऐसा ही है बोल करके उन्होंने क्या किया, कंपटीशन में फर्स्ट आ गया IAS में। इसलिए जैसा बाबा साहब ने बोला है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट, इस हिसाब से जब तक अपने बच्चों को अंबेडकर की राइट्स और बाबा साहब की जो दिखाया हुआ जो है रास्ता, जब तक आप लोग देखेगा, उसको अमल करेगा नहीं, देश के अंदर हम लोग आगे बढ़ने के लिए आगे बहुत कठिनाई होगी। मुझे आज ये इसी विषय पे जो है मुझे अपॉर्चुनिटी की मुझे आप लोगों ने जो दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।